اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اسموک کے باعث پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے اتوار تک تعلیمی ادارے، دفاتر، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، سنیما گھر اور جمز بند رہیں گے۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، ٹائر، پولیتھین بیگ اور چمڑا جلانے پر پابندی عائد۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز، پیٹرول پمپس، تندور، بیکریاں اور ڈیری شاپس وغیرہ کی پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ پابندی کا نفاذ لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ اور قصور میں ہوگا۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ، ناروال اور حافظ آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ۔ صوبائی دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 467 ریکارڈ کیا گیا۔ آلودگی کے اعتبار سے شہر لاہور دنیا میں فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ عامر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 488 جبکہ کینٹ کے علاقے کا AQI 484 ریکارڈ کیا گیا۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 480 ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ پاکستان کے مزید 6 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق کراچی سے 4، چمن سے 2، پشاور، کوہاٹ اور نوشہرہ سے ایک نمونے میں پولیو وائرس ملا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کہتے ہیں کہ پولیو وائرس افغانستان میں YB2A وائرس کلسٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے تاشکند میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان ایئر لائن کے پاکستان کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کے فلسفے خودی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم اقبال پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب حقیقت میں بدلا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد کا جذبہ بیدار کیا اور انقلابی روح پھونکی۔ غزہ پر گزشتہ 1 ماہ سے جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ ظالم فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسکولوں، ہسپتالوں کی طرف بمباری کی جبکہ جبالیہ، نصیرات اور شاطئی کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اسرائیلی طیاروں نے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 مساجد شہید کر دی گئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں مزید 306 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جن میں 78 خواتین اور 139 بچے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000
500 से तजावुज कर गई है, जबकि शोहदा में 4880 बच्चे और 2800 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी गैर कानूनी रहने वाले बशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर कानूनी तौर पर हाइश पजीर अफराद का महफूज इनखला और बाइज्जत तौर पर अपने वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। रोज़ाना हज़ारों गैर रजिस्टर्ड तारकीन बज़रिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। आप कहते हैं कि फास्ट ट्रैक पर नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है। अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ मिलना चाहिए। लीग रहनुमा जावेद लतीफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। 9 मई के पौधे की परवरिश का मतलब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचाना है। जावेद लतीफ ने कहा कि सदर मुमलिका दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने वालों के साथ रहे हैं। कहते हैं कि चेयरमैन PTI का वर्कर रहा हूँ। जो कुछ 9 मई के मास्टरमाइंड ने किया तो वो ठीक था, तो अब क्या समझूं? जब तक मुल्जिमान को कटहरे में नहीं लाएंगे इंसाफ नहीं होगा। बलूचिस्तान में CTD ने मस्तूं के इलाके कांक में कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़मान को हलाक कर दिया। तर्जमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुल्ज़मान से मुकाबला हुआ। उस दौरान 3 हमला आवर हलाक हुए। CTD तर्जमान के जारी करदा बयान के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। मुल्ज़मान से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। कोट मोमिन में कत्ल की लरसा खेज वारदात। नवाही इलाके घलापुर में खून की होली। कसर ने फायरिंग करके 2 खवातीन समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। अहमद शेख हरल ने जमीन के तनाज़े पर 4 अफराद को मौत के घाट उतारा। मरने वालों में मकसूदा, अरफा और फैसल भी शामिल हैं। तहरे कत्ल के वारदात के बाद इसी मुल्जिम ने मचीला में भी एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर माथेलो में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। दांत लगारी लिंक रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। भेरी बरादरी का नौजवान जाबहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त शमशेर के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। चिनियोट में कत्ल की वारदात। मोहल्ला दिलखुशाब के इलाके में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। साहिद को मुसल्लह अफराद गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। DSP सिटी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دیں کہ اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اسموک کے باعث پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے اتوار تک تعلیمی ادارے، دفاتر، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، سنیماز اور جم بند رہیں گے۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، ٹائر، پولیتھین بیگ اور چمڑا جلانے پر پابندی عائد ہوگی۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز، پیٹرول پمپس، تندور، بیکریاں اور ڈیری شاپس وغیرہ کو بھی پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ پابندی کا نفاذ لاہور، ننکانہ صاحب شیخوپورہ اور قصور میں ہوگا۔ مزید تفصیلات کے مطابق گجرانوالہ، شیخوپورہ، ناروال اور حافظ آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ اسموک سے متاثرہ اضلاع میں 10 نومبر کو بینک بھی بند رہیں گے۔ اعلامیے کے مطابق حکومت پنجاب کے 8 نومبر 2023 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ اور ناروال کے تمام بینکس، مائکرو فائنانس بینک 10 نومبر جمعے کو اپنی برانچز بند رکھیں گے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے آذربائیجان کے صدر الہام علیو نے تاشکند میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں حالیہ پیش رفت کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان ایئر لائن کے پاکستان کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور صدر علیو کے درمیان اسلاموفوبیا اور موسمیاتی تبدیلی سمیت مشترکہ چیلنجز پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تازہ ترین صورتحال اور غزہ میں انسانی بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 400 سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے شہر لاہور دنیا میں فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ عامر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 488 جبکہ کینٹ کے علاقے کا AQI 484 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 480 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ 10 سے 12 نومبر تک ہوگا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے شہر میں آج رات بارش برسنے کی بھی پیش گوئی کر دی ہے۔ لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک پر نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے، اگر کوئی مجرم ہے تو سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کون ملک کا خیر خواہ ہے۔ انتخابات سے پہلے نواز شریف اور چیئرمین PTI کو انصاف ملنا چاہیے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مجھے کوئی یہ سمجھا دے تو آج کیا ہو رہا ہے، آج کوئی 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد بھی غیر قانونی رہنے والے باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کا محفوظ انخلاء اور باعزت طور پر اپنے وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ تارکین بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ KP اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے ٹرانزٹ کیمپس
قائم کیے گئے ہیں جن میں روزمرہ کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ ملک پاکستان کے مزید 6 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق کراچی سے 4، چمن سے 2، پشاور، کوہاٹ اور نوشہرہ سے ایک نمونے میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ اس حوالے سے نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کہتے ہیں کہ پولیو وائرس افغانستان میں YB2A وائرس کلسٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیو وائرس کی موجودگی سے ہر بچے کو خطرہ ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ وائرس عمر بھر کے لیے معذور بنا سکتا ہے۔ پولیو کا کوئی علاج نہیں، صرف ویکسین ہی بچوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اس لیے والدین سے اپیل ہے کہ اپنے گھر آنے والے پولیو ورکرز کا خیر مقدم کریں اور اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ اور اب کچھ بات جنگی صورتحال کی تو غزہ پر گزشتہ 1 ماہ سے جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ظالم فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسکولوں، ہسپتالوں کی طرف بمباری کی، جبکہ جبالیہ، نصیرات اور شاطئی کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اسرائیلی طیاروں نے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 مساجد شہید کر دی گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں مزید 306 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جن میں 78 خواتین اور 139 بچے شامل ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ کوٹ مومن میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نواحی علاقے گہلا پور میں خون کی ہولی، قتل نے فائرنگ کر کے 2 خواتین سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا۔ احمد شیر حرل نے زمین کے تنازع پر 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرنے والوں میں مقصودہ، عرفہ اور فیصل شامل ہیں۔ تحریک قتل کی واردات کے بعد اسی ملزم نے مٹیلہ میں بھی ایک شخص کو قتل کر دیا۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب، لاشوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ کوٹ مومن میں قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی، نواحی علاقے گہلا پور میں خون کی ہولی، کزن نے فائرنگ کر کے 2 خواتین سمیت 4 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ احمد شیر حرل نے زمین کے تنازع پر 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مرنے والوں میں مقصودہ، عرفہ اور فیصل بھی شامل ہیں۔ تحریک قتل کی واردات کے بعد اسی ملزم نے مٹیلہ میں بھی ایک شخص کو قتل کر دیا۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لاشوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین خبر شامل کریں سوات سے، جہاں کوہستان کے بنیادی مسائل حل نہ ہونے کی وجہ نا اتفاقی ہے۔ سوات کوہستان قومی اتحاد کے صدر حبیب خان کہتے ہیں کہ اگر کوہستان قوم ایک ہو جائے تو علاقہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ معطر علی رپورٹ کریں گے۔ سوات کوہستان قومی اتحاد کے صدر حبیب خان نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوات کوہستان قومی اتحاد پورے پاکستان میں کوہستانی قوم اور دیگر پختون بھائیوں کی خدمت میں پیش ہے، اور خاص کر کراچی میں کوہستانی قوم اور پختونوں کو جو بھی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے حصول میں مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ہماری تنظیم اس کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں کوہستان قوم کے علاقے شدید متاثر ہوئے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مکانات اور زرعی زمینیں دریا میں بہہ گئیں۔ اس مشکل گھڑی میں کوہستان قومی اتحاد نے پورے پاکستان سے دیگر ڈونرز کے ساتھ مل کر ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص کر پنجاب اور کراچی میں موجود کوہستان قوم کے لوگوں نے دل کھول کر ان کی مالی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم مکمل غیر سیاسی ہے اور کسی بھی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
हमारी तंजीम में हर सियासी पार्टी से मशरान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम सिर्फ मजलूम लोगों की खिदमत के लिए बनी है। कि ये गैर सियासी तंजीम है और यानी कि मजलूम लोगों की खिदमत के लिए ये तंजीम बनी और ये अपना मजलूम लोग भाइयों की यानी कि ये साथ देंगे और खिदमत करने का जो मौका होगा उसको कभी उसमें कमी कोताही या दरेख नहीं करेंगे। कहा कि हमारे कोहिस्तान कौम में इत्तेफाक न होने की वजह से इलाका पसमानदा है। मोहम्मद मुत्तर अली, कोहिनूर न्यूज़, अपर। अवामी शिकायत पर एक्शन। DEO शुमाली वज़ीरिस्तान डॉक्टर महराज खान का तहसील शवाल स्पेन वॉम में मराकज़ सेहत का दौरा इंतजामात का भी जायजा। DEO ने इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। DEO ने मौका पर अवामी शिकायत सुनी और कार्रवाई की हिदायत कर दी। गैर हाजिर अमले को मुअत्तल करके तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। मीरपुर माथीलों में कत्ल की लरज़ाखेज वारदात हुई। दात लुगारी लिंक रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से भेरी बरादरी का नौजवान जाबक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त शमीर के नाम से हुई। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। खुशाब को खूबसूरत बनाने का मिशन। साबिक सूबाई वजीर मलिक आसिफ भाकी DG वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही से मुलाकात। अहम अमूर पर तबादले ख्याल। DG वाइल्ड लाइफ का कहना था कि खुशाब के अवाम की तफरीह के लिए सफारी पार्क को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि खुशाब की खूबसूरत बनाने का मिशन है। साबिक सूबाई वजीर मलिक आसिफ भाकी DG वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही से मुलाकात हुई। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DG वाइल्ड लाइफ का कहना था कि खुशाब के अवाम की तफरीह के लिए सफारी पार्क को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। ओकाड़ा शहर और गिरदनवाम में डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। थाना डिवीजन की हदूद कारी कॉलोनी में खवातीन के मदरसे में डकैती की वारदात से CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में डाकुओं को मौलमा का पीछे करते देखा जा सकता है। मदरसा ताहिरा रिजविया लल बनात की मौलमा जिसे ही रिक्शे से उतरी तो मदरसे में दाखिल हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर मदरसे में दाखिल हो गए। मुस्लिम लीग के एडिशनल सेक्रेटरी इतलात मियां हमजा करामत डोगर की इंस्पेक्टर अब नवाज लक के घर आमद। वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया गया। मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई है। नासिर खबर यह है कि पुलिस एहलकारों की जिस्मानी और ज़हनी फिटनेस बरकरार रखने का मिशन है। पुलिस लायंस खानेवाल में जारी 7 रोजा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। खानेवाल में पुलिस की जानिब से जिम खाना में मुनकिद होने वाला 7 रोजा स्पोर्ट्स गला इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स गला में जिला भर से मर्दों, खवातीन, पुलिस अफसरान और एहलकारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। 7 रोज तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स गला में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकुची, स्नूकर और टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। पुलिस के इंटर कॉम्पिटिशन करवाए जाए, टेबल टेनिस, स्नूकर, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टग ऑफ वॉर में। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का और उसके अंदर जीतने वाले तमाम तर खिलाड़ियों को, जिनमें ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें टीम्स हैं, जीतने वाली टीम्स को ट्रॉफीज और कैश अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी एक हेल्दी सरगर्मी है और मेरा इसके अंदर फर्दर प्लान ये है कि जो हमारी जीतने वाली टीम्स हैं इनको मुतल्लिका जो स्पोर्ट्स कैटेगरीज हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारी क्रिकेट टीम है जो जीतेगी फाइनल, उसको फिर हम RPO साहब से रिक्वेस्ट करके बिहाड़ी, लोधरा और मुल्तान के साथ उनके मैच करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर फारूक ने क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया, जबकि पुलिस मुलाजमीन, मर्दों, खवातीन ने रस्साकुशी और दीगर खेलों में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। और स्पोर्ट्स गला के इख्तिताम पर DPO और अनवर फारूक ने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। DC ननकाना चौधरी अरशद की हिदायत पर THK अस्पताल आने वाले मरीजों को तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में आने वाले मरीजों को फ्री मेडिसिन मुहैया की जा रही हैं और सेहत कार्ड पर भी इलाज करवाने वालों के लिए अदवायात मौजूद हैं। AC सांगला मुदस्सर मुमताज हरल MSTHK अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली ख्वाजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि शहरी अशिया खुरानोश खरीदते वक्त सरकारी नरखनामा जरूर चेक कर लें। शिकायत की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सिर मुमताज हरल ने कहा कि स्मोक से बचाव के लिए अवाम नास को इंतजामिया से भरपूर ताउन करके अहम किरदार अदा करना होगा।
नासिन चिन्योट में कत्ल की लड़साखेज वारदात हुई। मोहल्ला दिलखुशाब के इलाके में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जाहिद को मुसल्लह अफराद गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। डीएसपी सिटी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चिन्योट में कत्ल की लड़साखेज वारदात हुई। मोहल्ला दिलखुशाब के इलाके में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जाहिद को मुसल्लह अफराद गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। डीएसपी सिटी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब पुलिस की तरफ से वादिय तीरा खैबर के शोहदा की याद में दुआया तकरीब के शुरका ने शोहदा के बुलंदी दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। आला ओहदेदारान ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया है। शुरका का कहना था कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर ने टीम के हमरा दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम शोहदा पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। शोहदा की अजीम कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनस का कहना था कि पाक फौज, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए यकजान हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में वादी तीरा खैबर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर समेत स्टाफ ने शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर सेफ सिटी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर शोहदा की तस्वीर जगमगा रही थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर ने अपनी टीम के हमरा बहादुरी से दहशत गर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश किया। पाक फौज, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए यकजान और तमाम शोहदा हमारे दिलों में जिंदा हैं। पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी और चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर आम पर आ चुकी है। चेयरमैन पीटीआई के नाम नहाद ईमानदारी के बयानिए की असल हकीकत आश्कार हो गई। फरागोगी के असासों में 2017 से 2020 के दौरान 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा देखने में मिला है। मजीद तफसीलात के मुताबिक फरागोगी के ज़ाहिरी असासों में 420, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फरागोगी की जाती मलकियत है। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे उसके अलावा है। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फरागोगी मंदरजा सेल कंपनियों में हिस्सेदार हैं। नासिर शांगा मांगा पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी साजिद कई माह से मफरूर था। SHO तारिक महमूद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने पुलिस की कारकर्दगी को बेहद सराहा है। शोरकोट में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। कैंट रोड खमानावाला में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मामर शख्स जा बहक हो गया। मरने वाले की शिनाख्त मोहम्मद उमर के नाम से हुई है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। रेस्क्यू एहलकारों ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। अहमदपुर लम्हा में आसमानी बिजली गिरने से बाप जाबहक, बेटा शदीद जख्मी हो गया। वाकया चक नंबर 202 में पेश आया है। दोनों बाप बेटा घर के सहन में मौजूद थे कि आसमानी बिजली गिर गई। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर है अहमदपुर से, जहां लम्हा में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाबहक और बेटा शदीद जख्मी हो गया। वाकया चक नंबर 202 में पेश आया। दोनों बाप बेटा घर के सहन में मौजूद थे कि आसमानी बिजली गिर गई। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करें मेलसी से, जहां अल नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का
कॉलेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अंजुमन ताजिरान वालदैन समेत अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। सदर प्रेस क्लब दो कोटा डॉक्टर रमजान आसिफ कुरैशी का कहना था कि पसमानदा इलाके दो कोटे में अलनूर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का क्याम खुश आइंद अमल है। आवाम को मेयार और सस्ती अशिया की फराहमी का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की खसूसी हिदायत। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में इन एक्शन है। हरवंशपुरा, मुगलपुरा, बागबानपुरा, शालीमार, सिंहपुरा, जलो और दीगर इलाकों में दुकानों पर छापे मारे गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अवाम को मेयार और सस्ती अशिया की फराहमी का मिशन है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की खसूसी हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, बागवानपुरा, शालीमार, सिंहपुरा, जलो और दीगर इलाकों में दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। अशिया जरूरिया की कीमतों और मेयार का जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि डीसी लाहौर ने तमाम तहसीलों के एसीज को प्राइस चेकिंग के लिए खसूसी अहकामात जारी किए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन हसन नकवी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में आ गए हैं। मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल क्या होगी, जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत को देखा जाए तो जुमे का जो दिन है उससे भी मुस्तफ़ी कर दिया गया है। खासकर हफ्ता और इतवार का जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो बड़ा ही सख्त होगा। जिस तरह से आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो पुलिस अफसरान से मीटिंग की है और मीटिंग में बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया है। खासकर जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से तमाम डिविजनल एसपीज को जो है मैसेज दिया गया है। कोई भी स्मार्ट लॉक की जो है वो रोकथाम के हवाले से अगर नरमी पैदा करेगा तो उसके खिलाफ डीआईजी ऑपरेशन कहते हैं कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसी पर हफ्ता और इतवार के रोज जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। सीसीपीओ लाहौर ने बड़ी जो है वो बरहमी का इजहार किया है। खासकर एसपी हज़रात से टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो है डीआईजी ऑपरेशन और सीसीपीओ लाहौर और अपने एसपी हज़रात से बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के दौरान ये बात बड़ी क्लियर कर दी गई है कि कोई भी अगर लॉकडाउन में नरमी पैदा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई में लाई जाएगी। तो खासकर लाहौर की सड़कों की अगर सूरत देखी जाए तो मुकम्मल तौर पर जो है वो गाड़ियों का दाखिला, आना जाना और कोई भी ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं आएगी जिसमें बाकायदा तौर पर कोई नरमी बरती जाए। तो डीआईजी ऑपरेशन समेत सीसीपीओ लाहौर खुद जो है वो सरकारी गाड़ी पर आउट होंगे। तो हफ्ता और इतवार का जो दिन है वो बड़ा अहम दिन होगा जिनमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जिस तरह से मेडिकल स्टोर है, एम्बुलेंसेज हैं और दीगर ऐसी खाने पीने की कोई शॉप्स हैं जो कि होम डिलीवरी देती हैं, उनको जो है वो खुली रहने की इजाजत दी गई है। बाकी मुकम्मल तौर पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया है कि इस पर जो है वो अमल दरामद हर सूरत जो है वो करवाया जाएगा। लाहौर की पुलिस इस वक्त अलर्ट है और खासकर डीआईजी ऑपरेशन ने जो है वो बजरिया वायरलेस अपने जवानों को मैसेज दिया कि कोई भी जो है वो गफलत बरतेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसी तरह से पंजाब के 8 ही जिला में जो है वो 10 नवंबर की आम तहसील से मुस्तफी करार दिए गए जो मुख्तलिफ कारोबार का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। जिस तरह से महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल आईटी सेंटर्स 10 नवंबर की आम तहसील से जो है वो मुस्ताफी होंगे। जिस तरह से मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, वैक्सीनेशन सेंटर, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरियां, किराना शॉप, चिकन और मीट शॉप जो है वो 10 नवंबर की आम तहसील से मुस्तफी करार दी गई हैं। कॉमर्स सेंटर, पोस्टल कोरियर सर्विस, यूटिलिटी स्टोर और सिल्वर नेटवर्क टेलीकॉम सेंटर 10 नवंबर की छुट्टी से मुस्तफी करा दिए गए हैं, जिसमें लाहौर डिवीजन और दीगर 4 जिला में तलीमी इदारे और सरकारी व निजी इदारे भी जो है वो बंद रहेंगे। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से छुट्टी से मुस्तफी करार दिए गए अदारे खुले रहेंगे। खासकर सड़कों की अगर बात की जाए, सर मैंने बताया कि डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि कोई भी ट्रैफिक, कोई भी व्हीकल जो है वो आपको सड़कों पर नजर नहीं आएगी और दुकानें, मार्केटें तमाम की तमाम बंद होंगी। जिस तरह से हाल रोड और बिटन रोड के अलावा दीगर मार्केटों वालों ने जो है वो फैसला किया है कि हम मार्केटें खोलेंगे क्योंकि हालात पहले जैसे नहीं रहे, हालात खराब है। लेकिन पुलिस की जानिब से मुकम्मल इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि जो है वो हर सूरत स्मार्ट लॉक को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और
जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। एंटी राइट फोर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फाल कर दिया गया है और बाकायदा लाहौर की सड़कों के ऊपर जगह जगह जो है वो बैरियर लगाए जाएंगे। हो सकता है हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि लाहौर को बंद करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर जो है वो कंटेनर भी लगाए जाएं और बाकायदा हर SHO को बड़ी क्लियर वार्निंग दी गई है DIG ऑपरेशन की जानिब से। अपने अपने इलाके की मार्केट को वो बंद करवाने के जिम्मेदार होंगे। आज ही से जो है वो मीटिंगें शुरू हो गई है अंजुमन ताजरान के साथ दुकानें बंद करने के हवाले से, लेकिन अंजुमन ताजरान के जो है वो ओहदेदार इस बात से जो है वो बात नहीं आ रहे कि दुकानें बंद की जाएंगी। लेकिन अगर देखा गया कि ये दुकानें अगर खुली और पुलिस इनको बंद करवाने के लिए आगे आएगी तो फिर ये लाहौर की सड़कों पे दमादम मस्तकलंदर भी होगा। हफ्ता और इतवार का दिन जो है वो बड़ा अहम है। जिस तरह से DIG ऑपरेशन ने कहा कि कोई भी अगर लाहौर की सड़कों का इस्तेमाल करेगा, मार्केट खोलेगा तो कानून आहनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। जी ठीक है, हफ्ता और इतवार का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाना जरूरी है। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर सूरत हाल से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और शहर लाहौर से खबर आपको दें, जहां टमाटर भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। टमाटर की कीमतों को बाकायदा पर लग गए हैं, जिस वजह से शहरी बिलबिला उठे। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। महंगाई का तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। निगरान हुकूमत भी खामोश तमाशाई। हर रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। अब टमाटर की कीमतों को भी पर लग गए। टमाटर 200 से लेकर 250 तक फरोख्त होने लगा। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अवाम ने हुकूमत से अपील कर दी। शहरियों का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी सर जी अब सब्जी लेने के लिए आए हैं। टमाटर इतने महंगे हैं, समझ नहीं आए टमाटर लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। हुकूमत का क्या अपील है, ये सब्जी के बारे में, घी के बारे में, ये राशन के बारे में ख्याल किया जाए। गरीब बंदा क्या खाएगा, क्या कमाएगा। आपको पता है, अभी ये टमाटर लेने आया था, मुझे समझ नहीं आ रही टमाटर कितना महंगे है, कितने क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब जो से 2 वक्त की रोटी खा रहा है उसको खाने दिया जाए, उसका मुंह से निवाला ना खींचे आप। बस इतना गुजारिश, कुछ नहीं कह सकता मैं। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसा नाम है इसके ऊपर एक्शन ले, और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है क्योंकि अब हर इंसान जो उनसे परेशान हो गया हुआ है। कोई स्टेप ही नहीं उठा पा रहे, क्योंकि जिसको भी कहें, कोई बात करें कि ये जो महंगाई हो रही है, वो कहते हैं हमने नहीं की, पिछले ने की है, इन्होंने की, हमारी हुकूमत में नहीं हुई। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बासाख्ता ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वाक़ई आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने गुलाम सरवर खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मफलर पहनाकर खुश आमदीद कहा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बासाख्ता ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वाक़ई आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने गुलाम सरवर खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मफलर पहनाया। गुलाम सरवर खान का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत मुल्क व कौम के लिए खुश आइंद साबित होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत स्मोक लॉकडाउन के हवाले से अहम इजलास हुआ है। हुकूमती नोटिफिकेशन पर मुकम्मल अमल दरामद कराने का जायजा लिया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटें हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। 10, 11 और 12 नवंबर को बैंक, सरकारी, निजी दफातर, तमाम तलीमी इदारे, पार्क्स भी बंद रहेंगे। इसी बारे से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा इजलास में कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक लॉकडाउन के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। 10, 11, 12 नवंबर को बैंक, सरकारी और निजी दफातर, तमाम तालीमी इदारे और पार्क भी बंद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शहरियों से कहना था कि तमाम दिनों में शादी हाल्स जो हैं वो खुले रहेंगे। शहरी अगर शादी हाल्स की तरफ जा रहे हैं तो उनको अपने साथ दावतनामा लाजमी रखना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब ने शहरियों की अशद जरूरत और सहूलियात के लिए शादी हाल्स को इस्तिस्ना करार दिया है, जबकि
मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम सनतें खुली रहेंगी, लेकिन फैक्ट्री आउटलेट और सेल पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि ट्रैफिक महदूद तरीन रखने के लिए पुलिस चेक पोस्ट पर चेक करेगी। ताजरन से अपील की गई है कि जुम्मे को वो रजाकाराना तौर पर मार्केट बंद कर सकते हैं, ताहम हफ्ता और इतवार को जो है वो मार्केट हर हाल में बंद की जाएंगी। नोटिफिकेशन का इतलाक हफ्ता और इतवार को होगा। नोटिफिकेशन के नफाज के लिए शहर में ट्रैफिक मूवमेंट को महदूद तरीन किया जाएगा। तमाम टेक अवेज मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। होम डिलीवरी की इजाजत होगी। शहरी किसी उलझाव से बचने की सूरत में डीसी ऑफिस से राब्ता करें और रहनुमाई ले। नोटिफिकेशन में मज़कूरा तारीख और मज़कूरा पाबंदियों के मुताबिक सख्ती से इतलाक किया जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि स्मोक की वजह से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सख्ती का नफाज 11 और 12 नवंबर को किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट, शॉपिंग मॉल, दुकानें हफ्ता और इतवार बंद रहेंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया और इसके नफाज के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे और सख्त तरीन पॉलिसी बनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया जुनीद अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे। आज मुझ समेत पूरी कौम मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश बड़ी अकीदत व एहतराम से मना रही है। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को हौसले, खुद एतमादी, बहादुरी और दरवेशी के बावस शाहीन से ताबीर दी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के हौसले, खुद एतमादी, बहादुरी और दरवेशी के बावसफ शाहीन से ताबीर दी है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की यौम इकबाल पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा कि इकबाल के फ़लसफ़े खुदी ने इंसानियत को दुनियावी कुव्वतों और मादी चमक दमक से मरूब होने के बचाया है, बगैर अपनी ज़ात के इदराक से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का मुनफरद नुस्खा कीमिया तजवीज़ किया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि आज मुझ समेत पूरी कौम मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश बड़ी अकीदत व एहतराम से मना रही है। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को हौसले, खुद एतमादी, बहादुरी और दरवेशी के बावस्फ शाहीन से ताबीर दी है। लस्को चीफ शाहिद हैदर की यौम इकबाल पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू हुई। और आपको बताएं कि मलिका कोहसार मरी गिलियात में हल्की बर्फबारी और यालाबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों और मकामी लोगों ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में गिलियात और मरी में हल्की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मरी के मौसम के हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे रईस अब्बासी से। जी रईस, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से आपके पास? जी, मलका कोसार के मौसम की बात की जाए तो मलका कोसार में इस वक्त काले स्याह बादल मौजूद है। यह बस्ता ठंडी हवाओं का राज है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मलका कोसार और अयूबिया नथिया गली में हल्की बर्फबारी और यालाबारी का इम्कान है और इस वक्त भी मलका कोसार में तेज बारिश और यालाबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। मुकामी जो लोग हैं, शहरी हैं, उन्होंने गर्म मलबूसात ज़ेबतन कर लिए हैं। सर्दी से बचने के लिए हीटर, अंगीठी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इस वक्त भी काले स्याह बादल मलका कोसार में गर्दिश कर रहे हैं और बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अगले 24 घंटों में मलका कोसार में हल्की बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और अगर सियाहों की बात की जाए, टूरिस्ट की बात की जाए तो मलका कोसार में वीकेंड जारी है और तातीलात के दिन जारी हैं। बड़ी तादाद में टूरिस्ट, सियाह फैमिलीज मलका कोसार में मौजूद हैं। सुहाने मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, रुई के गालू को देख रहे हैं। जैसे ही आसमान से हल्के रुई के गाले
आ रहे हैं तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और हर जाविये से, हर एंगल से तस्वीरें, वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 24 घंटों में मलका कौसार में बर्फबारी शुरू होए तो उनकी जो खुशियां हैं वो मजीद दुबाला हो जाएं। जी ठीक है, टूरिस्ट जो है वो मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। रईस अब्बासी तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाए। हम यकीन दिलाते हैं कि हम पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सार्जियो बुसीना के अंग्रेजी अदब के पाकिस्तानी निसार प्रोफेसर डॉक्टर शहाब यार खान का यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में खुसूसी लेक्चर। कहा कि नौजवान नस्ल किताब को अपना दोस्त बनाए। तकरीब में तालिबात की बड़ी तादाद भी इस हवाले से मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं अली फारूक से, जो इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर शहबाब यार खान के हमरा मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस टाइम बिल्कुल मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में और यहाँ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शहाब यार खान साहब जो बोस्निया से आए हैं, उनसे बात करते हैं। वो पाकिस्तान के दौरे पे थे और मुल्क की और सूबे की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका दौरा बड़ा हेक्टिक था जी। हेक्टिक तो नहीं कह सकते, मगर यस फुल ऑफ एंगेजमेंट्स और फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, उन्होंने बुलाया अपनी यूनिवर्सिटी में। सुबह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, फिर एफसी कॉलेज में, और मैं यहाँ हूँ। तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ बच्चों से मिलके। इतने ज़हीन लोग हैं हम, माशाल्लाह ऐसा अच्छा एकेडमिया है। काश के हमें मौके मैसर हों। अच्छा सर, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिए आपने अपने दौरा जो लाहौर का था? यार अब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब में, फिर एफसी कॉलेज में हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, फैसलाबाद में जीसीयू में हुआ है, डॉक्टर साहब ने यहाँ बुलाया है, और भी एक दुका जगह मैं भूल गया हूँ शायद। लेकिन ये मेरे पास तो फहरिस्त आई थी, उसमें तो बहुत लंबा नाम था सारे स्केड्यूल, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया। फिर एक बुक लॉन्च था कल शाम को, आपने देखा है, तो वो माजरत खाऊँ अगर कुछ नाम जहन से निकल गए। लेकिन ये कि आई हैव 4 to 5 लेक्चर्स एवरी डे, तो माशाल्लाह यानी कि थोड़ा सा चैलेंजिंग कह सकते हो, लेकिन मुझे लुत्फ बड़ा आया कसम से। इट वॉज अमेजिंग ट्रिप। अच्छा, ये अब ज़ाहिर है आप बोस्निया चले गए, अब पाकिस्तान जब आप आए हैं तो क्या आपने देखा स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं? मैं तो जिससे भी मिला हूँ, मुझे वो लड़के लड़कियाँ बहुत ज़हीन लगे हैं। न सिर्फ वो बल्कि उनके साजा भी मुझे बड़ी मेहनती लगे हैं। आई वाज रियली सरप्राइज कि बहुत से लोगों ने तो अपनी किताबें छाप रखी हैं और बड़े एहतमाम से छाप रखी हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो इंशाल्लाह जब हम वापस जाएंगे तो बहुत सी यूनिवर्सिटी से हमारा हुआ है एग्रीमेंट साइन हुए हैं बहुत से लोगों के साथ। हम उनके अगर बच्चों को फ़िलहाल ना बुला सके तो उनके जो स्टाफ उनको तो बुला ही सकते हैं इंशाल्लाह। तो एक मैं समझ चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से तो हमारे बेहद रवाबित हैं, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल दोज इंडियन स्कॉलर्स। लेकिन पाकिस्तान से अभी तक हमारा इस तरह से कोई रब्ता नहीं बना हमारी यूनिवर्सिटीज़ का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमने कोई एग्रीमेंट्स किए हैं। तो जिस तरह वो हिंदुस्तानी बच्चे और टीचर्स आ रहे हैं माशाल्लाह वहाँ पे, वैसे इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी बच्चे और टीचर्स भी आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। जी नाम बताइएगा सर। जी मेरा नाम है डॉक्टर वहीदुर रहमान ख़ान। जी मुझे बहुत खुशी है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी तशरीफ़ लाए और इन्होंने शेक्सपियर के मौजू पर लेक्चर दिया। और अभी मैंने इख्तिताम पर कहा था कि ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शेक्सपियर ख़ुद लेक्चर दे रहा है। इतना ज़बरदस्त लेक्चर था, इल्मी एतबार से भी और तदरीसी एतबार से भी। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर था और हमारे तालिब इल्मों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर शहाब यार खान साहब मेरे भी टीचर हैं और मैंने भी इनसे पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि वाकई ही ये एक अपने हक़ में बहुत बेहतरीन, इनके अपने दौर में भी हमने अच्छा पढ़ा और अब भी ये इनका लेक्चर्स वगैरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होता रहा है और लोगों ने मुस्तफ़ीद किया, स्टूडेंट्स ने। और महकमा माहौलियात के स्क्वाड नंबर 1 इंस्पेक्टर मुमताज़, इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर और उनकी टीम स्मोक एमरजेंसी के बावजूद अपने एरिया से गायब। मुख्तलिफ मिल्स के बाहर बिजली की तारों को आग लगाकर फ़ज़ा को मज़ीद आलूदा किया जाने लगा। एक तरफ निगरान वज़ीर आला ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा रखा है तो दूसरी तरफ एंटी स्क्वाड के महकमे मंजर आम से ही गायब हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा एंटी स्क्वाड के महकमे मंजर आम से गायब हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए अफशा, ये एक बहुत ही संगीन जो है स्मोक की सिचुएशन वो अख्तियार हो चुकी है शहर लाहौर में। शहर लाहौर आलूदगी की वजह से जो है ना वो पहले नंबर पर आ चुका है
دنیا بھر میں پہلے نمبر پر دلی تھا، جس کے بعد لاہور کا نام آ رہا تھا، لیکن اب لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ پورا سال محکموں کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے، کیونکہ محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں پورا سال جو ہے وہ اپنے گھروں اور اے سیوں والے کمروں میں بیٹھ کر صرف اسی بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب خطرے کی گھنٹی بجے اور کب وہ جو ہے نا وہ باہر نکلیں، لیکن اب جو سچویشن ہے وہ بہت ہی خراب ترین ہو چکی ہے۔ میں ابھی بھی اس وقت جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر ہوں اور دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے، سب سے زیادہ جو پولوشن زیادہ ایریاز ہیں وہ شادرے والی سائڈ اور محمود بٹی انٹرچینج اور قائد اعظم انڈسٹریل ایریا، یہ علاقے ہیں جو سب سے زیادہ پولوشن کا باعث جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بن رہی ہے، جو مختلف کالے دھوئیں جو ہے وہ چھوڑتی جا رہی ہیں، اور اس کے جو بڑے بڑے ٹرکس ہیں، ٹرالیاں ہیں، اور ان کی جو ڈسٹ ہے وہ بہت ہی آنکھوں کو، گلے کو متاثر کر رہی ہے، اور جو فوگ ہے یہ مختلف انڈسٹری سے جو دھواں نکل رہا ہے دن کے وقت، اور یہ سارا کچھ آپس میں ملنے کے بعد ایک زہریلا جو ہے نا وہ کیمیکل آنکھوں اور گلے میں جو ہے پورے انسانی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کر رکھا ہے۔ لیکن ابھی تک کمیشن لاہور کی جانب سے یہ سخت انسٹرکشن دی گئی تھی کہ محکمہ ماحولیات اور کمشنر اور ایم سی ایل کی ٹیمیں جو ہے مشترکہ کارروائیاں کریں گی، لیکن ابھی تک یہ دن کے وقت بھی دیکھا گیا ہے کس طریقے سے جو ہے نا لوگوں نے بجلی کی تاروں کو اپنی اپنی فیکٹریوں کے باہر آگ لگانا شروع کر دیا چند روپوں کے لیے، جن میں سے انہوں نے تانبا نکالنا تھا، جسے وہ بہت ہی کالے رنگ کا دھواں جو فضا میں جا رہا ہے اس نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لیکن جتنے بھی محکمے تاحال ابھی اس پر جو سخت کارروائی کرنا ہوتی ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ میرا جو گلا ہے وہ اس ٹائم انتہائی خراب ہے، کیونکہ یہ فضائی جو آلودگی ہے اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس کے باوجود سموگ ایمرجنسی بھی نافذ ہے، لیکن ماسک کا جو ہے وہ بھی استعمال کیا جانا ہے، اور دوسری طرف جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کا بھی نفاذ کیا گیا ہے، لیکن یہ جو محکمے ہیں ان کا کوئی بھی اینٹی سکوڈ وہیکل کے اوپر کاروائیاں کرتا بھی نظر نہیں آ رہا، نہ ہی کسی انڈسٹری کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یہ سچویشن بن چکی ہے لاہور کی جو بہت ہی خطرناک ہے، اور آنے والے 2-3 دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ مزید جو ہے نا وہ خراب ہونے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں مزید صورتحال بگڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عثمان مغل تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ اقبال کے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت سے جمال شانی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ سید جمال شاہ نے عظیم مفکر اور مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کا درس خود ہی قیام پاکستان کی بنیاد بنا ہے۔ آج بھی اقبال کی فکر کو مشعل راہ بنا کر ہم اپنے وطن کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی نے کہا کہ علامہ اقبال اور قائد کی سوچ کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ دوسری جانب جامعہ گجرات کی قائد اعظم لائبریری کے زیر اہتمام ڈاکٹر محمد یوسف کی کتاب گلوبل ساؤتھ میں کلچر اور کمیونیکیشن کی ساختیات نو پر تحقیق کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب پروفیسر ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان، امتیاز عالم پروفیسر ڈاکٹر حسن رضا شیرازی، احمد ولید، ڈاکٹر نوید اقبال چودھری اور دیگر اس حوالے سے شامل تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ جامعہ گجرات کی قائد اعظم لائبریری کے زیر اہتمام ڈاکٹر محمد یوسف کی کتاب گلوبل ساؤتھ میں کلچر اور کمیونیکیشن کی ساختیات نو پر تحقیق کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب پروفیسر ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان، امتیاز عالم پروفیسر ڈاکٹر حسن رضا شیرازی، احمد ولید، ڈاکٹر نوید اقبال چودھری اور دیگر اس حوالے سے موجود تھے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں بڑی شمولیت، مظفر گڑھ حلقہ پی پی 268 سے محمد اجمل چانڈیا نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، جنرل سیکرٹری سردار اویس لغاری نے اجمل چانڈیا، اکرم چانڈیا کو پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ اجمل چانڈیا اور اکرم چانڈیا کی مسلم لیگ نون میں شمولیت سے پارٹی اور مضبوط ہو جائے گی۔
नासिर खबर दें आपको कि पीटीआई की 3 साला दौरे हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई और चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर-ए-आम पर आ गई है। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहात ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार हो गई। फरागोगी के असासों में 2017 से 2020 के दौरान 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक फरागोगी के ज़ाहिरी असासों में 420, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फरागोगी की ज़ाती मलकियत है। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे उसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी मंदरजा सेल कंपनियों में हिस्सेदार है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गौसिया बिल्डर्स, अलबराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलबराक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अलमाज डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अलमाज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड और सेनेटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकॉन से आउट ऑफ कोर्ट की नेशनल क्राइम यू के मुआहदे के तहत एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पीटीआई की हुकूमत को मिले थे। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी ने इस वारदात के इवज 19 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से उनके हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई थी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।